So in previous class we have studied about the liquid pressure exerted by liquid, and we have seen that with increase in depth the pressure increases, and with at a given depth pressure is equal in all directions. With the help of an experiment we have seen that. Now I have given you a formula that P equals to rho g h, where h is the depth from the free surface, g is the acceleration due to gravity, and rho is the density. So we know that as depth increases, pressure will going to increases. If density of liquid increases, pressure will going to increase. So I will going to now see variation of pressure with density. So variation of pressure with density, it is clear from the given formula that with increase in density, pressure also get increased. So to verify this, we will going to do an experiment. In this experiment we will going to take a tube, and at the bottom of the tube I will going to have a balloon. So there are two tubes. These tubes are stuck in a holder like this, and this tube is also we are holding in a holder like this. Now this tube we are having balloons. We are using balloons uh, here in tube. So this is one balloon which I have fixed in this tube, and here also I have fixed a balloon in this tube. Now I will going to pour liquid. In this I will going to pour kerosene, and in this I will going to pour water. Okay, and when I will going to do so, I am using same volume of kerosene and water. Volume I have taken same volume of kerosene and water. So what I will going to observe, that balloon in which I have filled kerosene will get inflated less than the balloon in which I have filled up water. So when I have filled kerosene and when I have filled water, so as the balloon gets more inflated, means pressure exerted by water is more and pressure exerted by kerosene is less. As density of kerosene is less, so pressure is also less, and as density of water is more, so pressure is more for water. So with the help of this experiment we have proved that if the density of a liquid is more, then the pressure is also more, and if the density is less, then the pressure is also less. Now the third point that we will going to see is that liquids exerts pressure on walls of the container. The container which are containing the liquids, the containers which are containing the liquids will going to experience some pressure due to the liquid in it on their walls. So again I am taking a tube, and in this tube below at the end I am having some opening. To this opening I am having a balloon attached. I am having a balloon like this attached to this opening. Okay, now I will going to start fill this tube with some water. I am filling this tube with water. So when I filled this tube with water, what is happening, that this balloon
when this is filled with water, this balloon gets inflated. Means when I filled this tube with water or some liquid, this balloon, when liquid was not there, this balloon was not inflated, this balloon was slack. This balloon was slack like this, where I have not filled some liquid in it. But as soon as I fill the liquid, this balloon gets inflated. Means this liquid must have exerted some pressure on the wall, which inflated this balloon. Hence, liquids exerts pressure on the walls of the container. So, with increase in the depth, pressure increases. Due to the pressure difference in depth, buoyancy gets its rise. So, buoyant force, that is an upthrust that liquids exert on every body which is submerged in liquid. Then we know that formula P equals to rho GH. From here we get pressure is directly proportional to depth from the free surface, and pressure is directly proportional to the density. Means on increasing the density of liquid, pressure also gets increased. That we have seen with an experiment. Now we have seen that liquids, when they are contained in a container, they exert pressure on the walls of the container. Means I am having atmosphere over here, so this atmosphere is exerting pressure on the walls of this room, and it is also exerting pressure on me, that we know that is known as atmospheric pressure. So जब भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड एक कंटेनर के अंदर रहता है, तो वो उसकी वॉल्स पे क्या लगाता है बच्चों? प्रेशर लगाता है. दैट वी हैव सीन बाय दिस एक्सपेरिमेंट. और जब भी डेंसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड की, तो उसका प्रेशर भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा. ओके, नाउ द fourth point that we are going to see in this is that liquid seeks their level. Liquid seeks their level. Means if a liquid is flowing from certain height, then it will going to try to achieve that height again. That is the only reason that we use tanks at height, so that when water flows, it can rise again in a building to achieve that same height. Okay, so the tanks that we use in a locality, that is at height, we store water at certain height, so that when water flows, it tries to regain that same height, so that they get raised up in the pipes of the houses till the maximum amount of floors. That is the only reason that we store liquids in tanks in at higher level in localities. Okay, so liquid seeks their own level means if I am taking different shapes of container, such as one shape is this, then I am taking one shape like this, then I am taking one shape like this, then I am taking one shape like a random one. Now I have connected all these with a horizontal pipe. Okay, like this. Now if I will going to fill water in this, and let us say first it is closed over here, it is closed. Okay, and I have filled water in this like this. As soon as I will going to open this, water will going to start flowing over here, and it will going to rise in all these vessels. It will going to rise in all these vessels. Up to a same height, it will going to rise in all these vessels up to a same height, that is, let us say h. हुआ क्या, जब इसमें लिक्विड इतना था तो यहाँ पर कुछ प्रेशर था, लेट अस से दैट वाज P है.
और यहाँ कोई भी प्रेशर नहीं था, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। और मुझे पता है पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा था, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ ऊपर था, और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ा रहा हूँ मैं लिक्विड कॉलम की, तो यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। जैसे मैंने इस ओपनिंग को खोला, लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो लिक्विड यहाँ से यहाँ फ्लो करा, और वो तब तक फ्लो करेगा तब तक सब में प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब आप देखें तो यहाँ सब में पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर सब में क्या प्रेशर है, इट इज़ पी एटमॉस्फेरिक। ओवर हेयर इट इज़ पी ए, over here it is PA, over here it is PA, and over here it is P atmospheric। यहाँ सब पे एयर प्रेशर लगा रही है, दैट इज P atmospheric। और सब में हाइट सेम है, तो सबका बॉटम प्रेशर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ PA डैश, ये PB, ये PC और ये PD। ये सारे प्रेशर क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि यहाँ PA प्लस रो जी एच, PA प्लस रो जी एच, PA प्लस रो जी एच, PA प्लस रो जी एच। रो जी एच कहाँ से आया, यहाँ से आया, जहाँ पे रो क्या, डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हाइट। सबकी हाइट सेम हो गई, तो सबके प्रेशर क्या हो गए, बॉटम पर इक्वल हो गए। अब सबके प्रेशर इक्वल हो गए, तो कोई भी लिक्विड इधर उधर फ्लो नहीं होएगा। तो मैंने देखा जब भी मैं ऐसे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ वेसल्स, कैसे ही वेसल्स हो, जब हम उनको एक हॉरिजॉन्टल पाइप से कनेक्ट कर देंगे, तो सबके अंदर लिक्विड की हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। सबके अंदर लिक्विड की हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी, ताकि सब में प्रेशर क्या रहे, बराबर का रहे उनके बॉटम पे। So pressure at here, here, here and here is same irrespective of the area of these beakers at the bottom. क्योंकि pressure is only rho gh. It only depends on the height column, density. Density is same as the liquid is same, and acceleration due to gravity. Okay. So this is what liquid seeks their लेवल। लिक्विड वापस अपने उस लेवल पर आने की कोशिश करता है, तो यहाँ से ऐसे फ्लो करा, इसने कोशिश करी अपने लेवल तक आने की, और इसका लेवल कम हो गया था, तो कहाँ तक आएगा, जब तक दोनों का लेवल क्या ना कर जाए, मैच ना कर जाए। तो जब तक दोनों का लेवल मैच करा, और जैसे ही वो लेवल मैच करा, क्या हो गया, लिक्विड रुक गया फ्लो होना, क्योंकि दोनों में प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। और जैसे ही प्रेशर सेम हो जाएगा, लिक्विड का फ्लो बंद हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड फ्लो करता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। So this was what liquid seeks their level. Now we are going to see the instrument that we use to measure pressure. We have seen an instrument that was used to measure atmospheric pressure, and the name of that instrument was barometer. Now we are going to see an instrument that is used to measure the liquid pressure, and let us see what that instrument is. It is manometer. And we will going to study the simplest type, that is U-tube manometer. So U-tube manometer is a device which we use to measure the pressure. So this is a U-tube. It is closed at one end, and this end I have connected it with a pipe. This end I have connected it with a pipe. This is the pipe of which pressure I have to measure. Okay, and this is a U-tube. This is a U-tube. This U-tube is filled with some liquid, and it is generally mercury. So this U-tube is filled with the liquid, which is generally mercury. See, when this pipe is not connected, let it be open to atmosphere. So this will be open to atmosphere, this will be open to atmosphere. The level of the liquid in both the limbs, these are known as limbs. These are known as limbs. And this is a U-type or U-tube manometer. Here we have a scale. Okay, like this. होता क्या, जैसे मैंने इधर पाइप कनेक्ट करा, तो पाइप का लिक्विड इधर आएगा और इस पे क्या लगाएगा, प्रेशर। तो लिक्विड इधर आया, ये लिक्विड इधर आया, और इस पे इसने एक्सर्ट करा प्रेशर। जैसे इसने इसको प्रेशर एक्सर्ट करा, तो ये यहाँ से लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया।
यहाँ से लेवल क्या हो गया बच्चों, डाउन हो गया। और जैसे ये लिक्विड यहाँ से डाउन होएगा तो ये इधर राइज कर जाएगा, लिक्विड किधर राइज कर जाएगा, इधर को राइज कर जाएगा। लेटस से ये इधर राइज कर गया इतना। तो अब जो ये लिक्विड में, लिक्विड के लेवल में जो डिफरेंस आया है अपने पास, दैट इज एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। सो दिस डिफरेंस in the height of liquid, so difference in the level of manometric liquid gives me the pressure. इस डिफरेंस से मैं रो जी एच लगा के क्या निकाल लूंगा बच्चों, प्रेशर निकाल लूंगा कि इस पाइप के अंदर कितना प्रेशर है। तो एक मैनोमीटर का, यूट्यूब मैनोमीटर का सेटअप है, एक पाइप जिसका प्रेशर मुझे मेजर करना है वो मैंने कनेक्ट कर दिया एक लिम्ब से। जैसे ही मैंने इस पाइप को कनेक्ट करा तो इस पाइप का लिक्विड इधर फ्लो करेगा। अगर प्रेशर कम हुआ तो इस साइड राइज कर जाएगा और इस साइड से नीचे आ जाएगा। और अगर इसका प्रेशर ज़्यादा हुआ एटमॉस्फेयर से तो इधर से दबा देगा लिक्विड को और इधर का लिक्विड इधर राइज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो मैनोमेट्रिक लिक्विड के लेवल के अंदर डिफरेंस आएगा, इससे मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, अपना प्रेशर कैलकुलेट कर लूंगा। किसका, पाइप के अंदर के लिक्विड का। तो पाइप के अंदर के लिक्विड का मैं प्रेशर ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। किससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। सो दिस वाज यूट्यूब मैनोमीटर। सो हमने प्रेशर में एक्चुअली अभी तक पढ़ा क्या, हमने प्रेशर में पढ़ा कि लिक्विड्स कैसे प्रेशर लगाते हैं, लिक्विड का प्रेशर क्या होता है। ओके, लिक्विड का प्रेशर हाइट के साथ कैसे वेरी करता है। अगर हाइट मींस डेप्थ, हाइट हेयर मींस डेप्थ, दैट इज फ्रॉम फ्री सरफेस। अगर डेप्थ बढ़ रही है तो लिक्विड का प्रेशर भी क्या होएगा, बढ़ेगा। इसकी वजह से जो स्कूबा डाइवर्स हैं हमारा, वो स्पेशल सूट पहनकर जाते हैं ताकि वो प्रेशर जो कि डेप्थ के साथ बढ़ रहा है उनकी बॉडी उस प्रेशर को सर्वाइव कर सके। उसके बाद हमने देखा जैसे जैसे मैं लिक्विड की डेंसिटी बढ़ा रहा हूँ तो प्रेशर भी क्या हो रहा है उस लिक्विड के अंदर, बढ़ रहा है। तो ऑन इंक्रीजिंग डेंसिटी प्रेशर ऑल्सो गेट्स इंक्रीज। कैरोसिन की डेंसिटी कम थी तो यहाँ पे बैलून कम फूला था, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा थी तो बैलून बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो गया था। मतलब अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर भी क्या रहेगा, ज़्यादा। फिर मैंने देखा जिस कंटेनर के अंदर लिक्विड रखा रहता है वो लिक्विड उस कंटेनर की वॉल्स पे भी क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। जो मैंने एक और एक्सपेरिमेंट से सीखा, मैंने ट्यूबली साइड के अंदर मैंने एक होल करा, उसके अंदर बैलून फिट करा। जैसे मैंने इसके अंदर लिक्विड भरा, दिस बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड। मतलब ये लिक्विड ने कहाँ प्रेशर लगाया, वॉल्स पे भी प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से बैलून क्या हो गया, इन्फ्लेट हो गया। फिर मैंने देखा लिक्विड जिस लेवल पे रहता है वो अपने लेवल को वापस जब फ्लो करेगा तो उतने लेवल पे वापस आने की कोशिश करता है। इसकी वजह से जो वाटर टैंक्स है मेरी सोसाइटी के अंदर लगे हुए हैं बहुत अच्छी हाइट पे लगाते हैं, ताकि वहाँ से जब वाटर आए तो वापस कोशिश करे उतनी हाइट पर जाने की, तो बिल्डिंग के अंदर ऊपर वाले फ्लोर तक राइज कर पाएगा। जो कि मैंने देखा जब मैंने एक मेरे पास एक कंटेनर था, इसमें मैंने यहाँ तक फ्लूइड भरा था और यहाँ से बंद कर रखा था। जैसे मैंने इसको खोला तो फ्लूइड याला नीचे गया और इधर फ्लो हुआ, और कब तक ऊपर उठा, जब तक उस इन सब का लेवल सेम नहीं हो जाए। क्योंकि जैसे ही लेवल सेम होएगा तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि सेम डेप्थ पे हो जाएगा ये। और मुझे पता है सेम डेप्थ पे प्रेशर क्या रहता है, इक्वल रहता है, और हर डायरेक्शन में इक्वल रहता है। वो भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट से सीखा था, इसमें फनल को मैनोमीटर से कनेक्ट करा था। वो जो मैनोमीटर से कनेक्ट करा था, मैनोमीटर ये रहा। मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, हम प्रेशर को मेजर करते हैं। तो मैंने एक पाइप लिया जिसके अंदर के लिक्विड का प्रेशर मुझे मेजर करना था, और ऐसे मैनोमीटर की यूट्यूब होती है जिसके अंदर 2 लिम्स होते हैं, इससे मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जैसे इसको कनेक्ट करूंगा तो इसके अंदर जो लिक्विड रहता है, जनरली वो मरकरी रहता है, तो वो लिक्विड पे ये इधर का फ्लूइड आके प्रेशर लगाएगा। पहले ये लिक्विड का लेवल सेम था क्योंकि दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। जैसे इधर के लिक्विड ने आके इसको प्रेशर लगाया तो ये लिक्विड का हाइट नीचे चल गई और इधर से वो क्या कर गई, राइज। तो ये जो डिफरेंस आया इसके लेवल के अंदर, मैनोमेट्रिक लिक्विड के लेवल के अंदर, उससे मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, इस पाइप का प्रेशर इस स्केल पे रीडिंग से मैं कैलकुलेट कर लूंगा। So this is what we have seen in pressure. Now a last topic is remaining, which is known as Pascal's law. So let's start the Pascal's law.
There was a great scientist named Pascal, and he gave this law that is known as Pascal law. He said that in a static fluid, if a fluid is confined in a vessel or container, that is, it is static, then if we change the pressure at any point in the liquid, that change in pressure is transmitted throughout the liquid. That change in pressure is transmitted throughout the liquid. मतलब अगर एक liquid एक container के अंदर confined है और static है, और अगर मैं एक point पर किसी भी पॉइंट पे उस लिक्विड के अंदर प्रेशर को चेंज कर दूंगा, तो वो जो चेंज है प्रेशर का, वो पूरे लिक्विड के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा. मतलब हर पॉइंट पे वो चेंज आपको दिखेगा जो एक पॉइंट पे मैंने चेंज करा है प्रेशर का. सो लेट्स सी पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. पास्कल लॉ तो मुझे समझ में आ गया कि क्या होगा. मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड है. आई एम हैविंग लिक्विड इन दिस. Okay, and we are having some piston over here. And we are having a piston over here also. The area of piston over here, it is A2, let us say, and area of piston over here is A1. Now if I am applying a force F1 over here, then I will going to get a force F2 over here. See how. See now what is happening. ये confined liquid है. अब मैंने इधर इस पिस्टन को प्रेस करा F1 फोर्स से, तो यहाँ पर प्रेशर कितना जनरेट हुआ, जल्दी बताइए आप मुझे. कितना प्रेशर जनरेट होएगा? प्रेशर जनरेट होएगा F1 बाय A1. यहाँ पे जो प्रेशर पहले था उसमें चेंज कितने का आ जाएगा? F1 बाय A1 का, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा F1 फोर्स लगाया. जैसे ही मैंने F1 फोर्स लगाया तो यहाँ नया प्रेशर, यहाँ प्रेशर बढ़ गया. कितने से बढ़ गया? वो F1 बाय A1 से यहाँ प्रेशर बढ़ गया. अब अगर यहाँ प्रेशर F1 बाय A1 से बढ़ा है तो पूरे लिक्विड के अंदर वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा. और यहाँ भी प्रेशर कितने से बढ़ जाएगा? इतने से ही बढ़ जाएगा. तो यहाँ जो प्रेशर बढ़ेगा वो भी इतने से बढ़ जाएगा. लेकिन यहाँ प्रेशर मान लो यहाँ फोर्स कुछ रखा हुआ है, दैट इज लगा हुआ है, दैट इज F2 बाई A2. सो जो ये प्रेशर है वो और यहाँ का प्रेशर क्या होएगा? बराबर. यहाँ जो इंक्रीज हुआ है उतना ही उधर भी इंक्रीज दिखेगा. तो दीज टू विल बी इक्वल, मीन्स F1 बाय A1 will be equals to F2 by A2. Okay. क्या करा मैंने? यहाँ F1 फोर्स लगाया. जैसे यहाँ F1 फोर्स लगाया, इंक्रीज हो गया प्रेशर का F1 बाय A1. वो पूरा प्रेशर ट्रांसमिट इक्वली होएगा इस लिक्विड के अंदर, और यहाँ भी प्रेशर में राइज कितना आएगा? उतना ही जो यहाँ पर आया, दैट इज P. तो यहाँ जो प्रेशर है इट विल बी P, और वो किसके बराबर हो जाएगा? F2 बाई A2 के, क्योंकि यहाँ कुछ वेट या फोर्स लगा हुआ है, दैट इज F2. सो इट विल बी F2 बाई A2, बट वो किसके बराबर होना चाहिए? जो प्रेशर का चेंज यहाँ आया, दैट इज P. तो इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों का प्रेशर का चेंज क्या होना चाहिए? सेम, क्योंकि पूरे लिक्विड के अंदर सेम ट्रांसमिट हुआ है. तो F1 बाई A1 इक्वल्स टू F2 बाई A2. अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास आएगा F1 इक्वल्स टू F2 बाई A2 इंटू A1. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ F2 इंटू A1 बाय A2 F1. अब थोड़ी सी एनालिसिस करें अपन तो मुझे एक चीज पता चल जाएगी. आई कैन फाइंड आउट वन थिंग. सी दैट A1 is smaller. A1 is smaller than A2. If A1 is smaller than A2, then F1 will be smaller than. अगर A1 A2 से छोटा है तो ये टर्म 1 से छोटी हो गई, और ये टर्म 1 से छोटी हुई और F2 से मल्टीप्लाई हुई, तो F1 क्या हो गया? F2 से छोटा हो गया. मतलब मैं यहाँ पर कम फोर्स लगाऊंगा और यहाँ पर मैं ज़्यादा लोड उठा सकता हूँ. मैं कम फोर्स से ज़्यादा लोड उठा सकता हूँ क्योंकि F2 की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है. तो आई विल गोइंग टू एक्सर्ट लिटिल फोर्स ओवर हेयर एंड आई कैन अपलिफ्ट अ ग्रेट लोड ओवर हेयर. तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहीं से आता है. पहली बात तो अगर आपको इनमें से कुछ भी टर्म मिसिंग और एक टर्म पूछा होता है आप कैलकुलेट कर सकते हो.
आपको पता होना चाहिए जो प्रेशर का चेंज यहाँ आएगा उतना ही प्रेशर का चेंज यहाँ भी आएगा। यहाँ प्रेशर है F2/A2, यहाँ प्रेशर है F1/A1, ये दोनों क्या होंगे बराबर। तो मैंने इन दोनों को यहाँ बराबर कर दिया, F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2, और उससे मेरे पास ये कंक्लूजन आया। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन देखते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज इन हाइड्रोलिक लिफ्ट। और हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज जनरली यूज्ड टू अपलिफ्ट दी ऑटोमोबाइल्स, कार्स, जीप्स, इनको हम ऊपर उठाने के लिए काम में लेते हैं। कैसे उठाते हैं, सेम ऐसा ही अरेंजमेंट रहता है। यहाँ पर मेरे पास एक लीवर रहता है, देयर इज अ लीवर ओवर हियर, so I am having a lever, okay, and I will going to exert some force with help of that lever. There is a wall over there, here there is a wall, so I am making a wall over here, okay, and here I am having car. Instead of F2 I am having my car over here. Now as soon as I will going to with my hand I will going to press this lever, it will going to exert some force over here. As soon as it will going to exert some force, there will be a pressure change here. That pressure change will be transmitted till here. As there will be greater pressure and here will be lower pressure. यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, जैसे मैंने हैंडल से लीवर को प्रेस कराया, फोर्स लगा तो प्रेशर का चेंज हुआ, पूरा लिक्विड में ट्रांसमिट होगा, यहाँ तक ट्रांसमिट हुआ। जैसे यहाँ तक ट्रांसमिट हुआ, इधर का प्रेशर क्या था ज़्यादा और इधर का प्रेशर कम था, वॉल खुल जाएगा और इधर लिक्विड फ्लो करेगा। जैसे लिक्विड इधर फ्लो करेगा तो यहाँ का प्रेशर, वही प्रेशर जो इधर था इंक्रीज हुआ था, वही इधर ट्रांसमिट होते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा, और यहाँ ये कार को क्या कर देगा, लिफ्ट कर देगा। यहाँ पर ये कार को लिफ्ट कर देगा। जैसे ही यहाँ कार को लिफ्ट करेगा और जो हाइट मुझे चाहिए यहाँ तक लिफ्ट हो जाएगी, मैं लीवर को वापस अपना हैंड लीवर से हटा दूंगा। जैसे ही लीवर से हैंड हटाऊंगा, ये लिक्विड पीछे नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर और यहाँ प्रेशर इक्वल है, तो वॉल्व क्लोज हो जाएगा। ये वॉल्व जैसे क्लोज होएगा, लिक्विड पीछे नहीं आ पाएगा, मेरी कार एक हाइट पर उठकर रुक जाएगी, मेरी कार एक हाइट पर उठकर रुक जाएगी। दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। और मैं जानता हूँ मेरे हाथ से जो फोर्स लगेगा दैट इज F1, और वो जो F2 मतलब कार के फोर्स को, कार के वेट को उठा रहा है, वो बहुत ज़्यादा है। किससे, F1 से, क्योंकि ये एरिया कम है और ये एरिया क्या है, ज़्यादा है। ये एरिया कम है और ये एरिया ज़्यादा है, इसकी वजह से ये ऐसा हुआ कि यहाँ जो प्रेशर है वही प्रेशर वहाँ रहा, लेकिन फोर्स के अंदर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। यहाँ फोर्स मुझे बहुत कम लगाना है, मेरे हाथों से लगाऊंगा, और इधर क्या लिफ्ट हो जाएगी, कार लिफ्ट हो जाएगी। तो with help of my hand I can lift a car if I am having a hydraulic lift. So hydraulic lift is an practical application of Pascal's law. Pascal law ने क्या कहा, if there is a change in pressure in a confined liquid then that change is transmitted throughout the liquid. तो यहाँ जो भी प्रेशर का चेंज आया पूरे के पूरे इस लिक्विड में चल गया। यहाँ चेंज आया था P, that is F1/A1, और यहाँ पर जो चेंज आया वो उसके ही बराबर होएगा, और ये इसका फोर्स मान लेते हैं कुछ F2 था, तो F2/A2 दोनों बराबर होंगे, F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2, क्योंकि जो प्रेशर का चेंज यहाँ आया वो पूरा का पूरा इधर ट्रांसमिट हो जाएगा। जब मैंने देखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, F1 इक्वल्स टू F2/A2 इंटू A1, A1/A2 को अलग लिखा, क्यों, क्योंकि A1 छोटा है A2 से। मैंने डिजाइन ऐसी करी कि यहाँ का मैंने क्या लिया, एरिया छोटा लिया और यहाँ का एरिया बड़ा लिया। इससे मुझे ये फायदा मिला कि ये टर्म 1 से छोटी हो गई, और जब F2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये F1 को F2 से कम कर देगी। तो F1 इज लेस देन F2, मतलब मैं यहाँ कम फोर्स लगाऊंगा और ज़्यादा फोर्स मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। मतलब हैवी चीज को मैं उठा सकता हूँ ऑन एप्लीकेशन ऑफ वेरी लेस फोर्स। सो दिस इज व्हाट वी डू इन हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक में भी अपन पास्कल्स लॉ का ही यूज करते हैं। दिस वाज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। सो विद दिस टॉपिक वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर ऑफ प्रेशर, दैट इज द second chapter of class 8th. From next lecture we will going to start a new chapter. So thank you for today. We will going to continue in our next lecture.